Hi guys, this is another lecture of human rights and values. And in this lecture, we're going to talk about the homeless and the refugees and the slum dwellers. Okay, what are the problems faced by these people and how they cope up with them. Before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management. And the subject that I'm taking up over here is human rights and values. So far we have covered that, what are the human rights, what are the core issues as in poverty, overpopulation, illiteracy, unsustainable development, and the disadvantaged groups includes the women, children. Now we'll talk about the homeless, slum dwellers, and the refugees and internally displaced persons. So let's get started. Yeah. So we have recently heard about these refugees and internally displaced person a lot. There was a lot of buzz around it. And so let's understand what exactly refugees mean and who are internally displaced persons. Okay. So a refugee is a person who has left the country of their citizenship because they fear persecution over their race, religion, nationality, belief, or membership of a particular social group. तो रिफ्यूजी कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है हु हैज लेफ्ट देयर कंट्री, जो अपनी कंट्री को छोड़ चुका है, जो उनकी सिटीजनशिप, जहां पे जिस कंट्री की उन्हें सिटीजनशिप मिली हुई थी, इफ दे हैव लेफ्ट दैट कंट्री बिकॉज दे फियर दैट दे हैव their life is being threatened, or their rights are being threatened, or they are being discriminated on the basis of their color, caste, creed, nationality, belief, or membership to any particular social group. इन किसी भी रीजन से अगर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और दे फियर दैट उनको मार दिया जाएगा, then they can then they seek asylum in another country, okay, and they are known as refugees. ठीक है. For example, India has been a hub for refugees so far. ने देखा है कि हमेशा हमने बहुत ही with open hearts we have welcomed all the refugees. But recently जो अभी डिबेट चल रही है ओवर कि कैसे उनके राइट्स को कितना स्टेटस दिया जाना चाहिए, उनको किस तरह का स्टेटस मिलना चाहिए एंड ऑल दैट. सो अभी उस तरह के टॉपिक्स पे हम नहीं जाते हैं. दैट्स वेरी मच सेंसिटिव टॉपिक. We'll restrict ourselves to the topic of refugees and internally displaced persons and what are the problems faced by them. ठीक है. सो जब ये लोग जो है अपनी खुलकर अपने ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एंड व्हेन देयर ह्यूमन राइट्स आर नॉट बीइंग गारंटेड बाय द कंट्री ऑफ देयर सिटीजनशिप, then they usually reside in some other country. Okay, तो वो टेम्परेरी एक शेल्टर सीक करते हैं दूसरी कंट्री में, जब तक उनकी कंट्री में, उनकी जो सिटीजनशिप कंट्री है वहां पर सिचुएशन जो है वो स्टेबल ना हो जाए. ठीक है. And sometimes it takes a lot of time to things to get stable, and normal होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है. तो usually these people वो उनको एक रिफ्यूजी वाले स्टेटस के साथ ही बहुत समय तक, कई सालों तक रहना पड़ सकता है किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी. ठीक है. जो जैसा कि देखा गया है, ऐसा बहुत बार हुआ है. ठीक है. सो we'll talk about their problems now. Also, internally displaced person is when जब वो किसी कंट्री को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो उसी कंट्री के अंदर हैं, जो रिफ्यूजीज की तरह ही उनको भी डर लग रहा है उनके राइट्स को लेके, या किसी भी और चीज को लेके अगर उन्हें डर लग रहा है, तो वो अपनी कंट्री के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जो उनका एक परमानेंट शेल्टर होता है, जो उनका परमानेंट ठिकाना होता है जहाँ पे वो रहते हैं अपने घर में, उसको उन्हें छोड़ना पड़ जाता है. ठीक है. तो एक क्रॉस स्टेट, दूसरी स्टेट में चले जाना, या किसी टेम्परेरी रिफ्यूजी सेंटर में चले जाना, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उन्हें हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड कहते हैं. देखो, इंटरनली मीन्स विद इन द कंट्री, एंड डिस्प्लेस्ड मीन्स डेफिनेटली दे आर चेंजिंग देयर प्लेस, दे आर डिस्प्लेसिंग and they're moving to some other place. ठीक है. लेकिन वो कंट्री के अंदर ही होते हैं. And this is a more problematic situation as compared to the refugees, because यहाँ पे वो उसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, सब कुछ है, बट फिर भी उनको इतना डर लग रहा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी भाग मिल्खा भाग, इन दैट मूवी व्हेन द ब्रिटिशर्स अटैक द सिख, जब उनको अटैक किया जाता है तो दे सीक शेल्टर टू सम अदर प्लेस, उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, वो किसी दूसरी जगह पर आकर रहते हैं, एंड वहां पे वो शेल्टर सीक करते हैं. तो रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह बनाए जाते हैं. ऑफन ना ये दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है हमारी कंट्री में. तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए भी जो शेल्टर वगैरह बनाए जाते हैं, उनको हम रिफ्यूजी सेंटर ही बोल देते हैं.
बट एक्चुअली में ये दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट है. रिफ्यूजी मीन्स अ पर्सन हु लीव्स द कंट्री ऑफ हिज सिटीजनशिप, हिज और हर सिटीजनशिप. एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज इन द कंट्री इटसेल्फ बट अपनी लेट्स से अपने रीजन से दूर या अपनी स्टेट से दूर होते हैं. ठीक है. So these are internally displaced persons. So if you could see this picture, this is how they live in, you know, जो उनके लिए shelter बनाए जाते हैं. So you could see the situation, you could see the state of mind of these people. उनके mind में क्या चल रहा होगा, उनकी क्या state of being होगी. If you could see in the picture which is shown below, तो लोग कैसे इतनी कम जगह में कैसे एक साथ ऐसे बहुत ज्यादा सो रहे हैं, लेट रहे हैं. तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. लाइक उनके पास प्रॉपर जगह नहीं है सोने के लिए. ठीक है. दूसरी अगर आप ऊपर वाली पिक्चर में देखो तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट. वो ऐसी कुछ भी जो भी मिल रहा है पका रहे हैं, बना रहे हैं. प्रॉपर उनके पास गैस नहीं है, स्टोव नहीं है, ऐसी लकड़ियां से वो जलाकर बना रहे हैं. ऑल्सो दे डोंट हैव एनी प्लेस टू स्लीप. वो ऐसे ही बस ऐसे टेंट बना दिए गए हैं, उनको मैट्रेसेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं. देयर इज नो शेल्टर ओवर देयर हेड. अगर बारिश आ जाए तो मे बी इन लोगों को भीगना पड़ सकता है. बीमार अगर हो जाए तो प्रॉपर हॉस्पिटल्स भी नहीं है जो इन लोगों को अकोमोडेट कर सकें. तो द सिचुएशन इज वेरी मच हर्टफुल and it's a matter of great concern that you know इनकी जो problems है उनको usually बात नहीं करी जाती है उनके बारे में या नजरअंदाज कर दिया जाता है. But today we'll talk about that. Let's start. So these are the challenges which are being faced by the refugees. So first is that you know difficulties obtaining legal recognition and personal documents. So these people usually find it very difficult to you know obtain legal recognition and personal documents. क्योंकि जब refugees जो हैं वो अपनी जो country है उसको जब वो छोड़ते हैं, जिस time पे वो छोड़ते हैं उस time the situation is very critical and they are not able to collect all the required necessary documents with themselves. कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पास पासपोर्ट तक नहीं होते and they are not able to prove their nationality कि वो किस country को belong करते हैं. तो it becomes a very stressful kind of a situation because वो अपने जो rights हैं उनको exercise करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी particular country में you are seeking asylum but you know आप वो country जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक particular region को ही जो है allow कर रही है and वहां पर उन्हें confusion हो रही है that you belong to which country. तो आपके पास अगर वो necessary documents नहीं है तो maybe you won't be able to prove your nationality and उस time पे आपको problem face करनी पड़ सकती है. Although country cannot refuse refugees to come in their country until and unless कोई बहुत ही problematic situation है, आपके trade relations या आपके कुछ political relations जो है वो काफी खराब हैं. Otherwise they would definitely allow you. But अगर ऐसी कोई situation है then it will be very difficult for you to prove your nationality क्योंकि personal documents हो गए या जो legal recognition से related जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, आपका पासपोर्ट हुआ, these are very much important documents. आपकी पासबुक हुई क्योंकि अगर आप in case अगर आप वापस भी आते हैं तो if you are not able to provide these legal documents then आपको शायद वापस अपनी कंट्री में आने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि तब भी आपसे क्वेश्चंस करे जाएंगे कि आप अगर आप कोई अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहते हो वापस आकर. लेट्स से आप अपनी जमीन के कागज जो है वो आपसे मिसप्लेस हो जाते हैं, वो आप नहीं संभाल के रख पाते हो, इधर उधर गुम हो जाते हैं, जो भी हो जाता है. एंड मीनवाइल जब आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, जब वहां पे सब कुछ ठीक हो जाता है आपकी अपनी कंट्री में, आप वापस आने का सोचते हो, देन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दोस डॉक्यूमेंट्स सो मे बी आप शायद अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज ना कर पाओ, ना प्रूव कर पाओ कि ये लैंड जो है वो आपको बिलोंग करती है. कोई भी और चीज भी अगर है जो अगर मिसप्लेस हो जाती है, अगर आपके पास नहीं होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आप कैसे चीजों को कन्वे कर पाओगे, कैसे प्रूव कर पाओगे. सो इट बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. The next thing is people often face discrimination. See, refugees जो होते हैं they are often treated as aliens कि ये तो पता नहीं कहाँ से आए हैं and people don't accept them socially भी, economically भी, culturally भी. They are often excluded from the society. तो उनको एक अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है. उनको कभी भी अपनी कंट्री का या अपनी कम्युनिटी का पार्ट नहीं समझा जाता है. दे आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है, उनके कलर के बेसिस पे, रिलीजन, ऑन देयर बिलीव्स, बहुत सारी चीजों पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. राइट. Next is poor access to healthcare, including psychological support. Again, this is one of the major reason why लोग जो है इतना ज्यादा सफर करते हैं रिफ्यूजीज कैंप में,
क्योंकि उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। ऑलरेडी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो है वो ये फैसिलिटीज जो है नॉर्मल लोगों के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। ऊपर से जब रिफ्यूजीज आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी जो कि और ज्यादा जो है एक सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम विद गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। खाने की भी अगर हम बात करें तो उनको खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास खुद का तो कुछ रहता नहीं है, ना ही कोई रहने की जगह है, प्रॉपर घर नहीं है, प्रॉपर गैस नहीं है, स्टोव नहीं है। उनको जो मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, वो ही उनको खाना पड़ता है। यूजुअली वो इतना लाइक वो ऐसा खाना होता है जो आप ज्यादा टाइम तक स्टोर भी नहीं कर सकते, ना ब्रेड्स वगैरह, इस तरह की सूखी रोटियां वगैरह, इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं, बिस्किट्स हो गए। अगेन आप वहाँ की उसकी उन खाने की चीजों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को आप ज्यादा उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यूजुअली ये देखा गया है कि उनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डिग्रेडिंग होती है, थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। अगेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता, एक जो मेंटल साइकोलॉजी हो जाती है इन लोगों की, दैट यू नो वी आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड एनीवेयर, हम लोगों को बिल्कुल अलग समझा जा रहा है। तो एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक उनकी साइकोलॉजी हो जाती है। पीपल ऑफन गेट डिप्रेस्ड, मेंटल डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी होने लगती है कि ये हम क्या किस सिचुएशन में आ गए हैं। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दिस सिचुएशन, एंड उस टाइम में वो अपने आप को शायद इस तरह की एक्टिविटीज में भी इंडल्ज कर लेते हैं जो शायद जिन पे उन्हें बाद में पछताना पड़े। एंड इन सब चीजों को डील करने के लिए भी उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगेन बिल्कुल नहीं होती है। छोटी मोटी फर्स्ट एड किट्स वगैरह अवेलेबल होती है, बट अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो दे हार्डली गेट एनीवन टू अटेंड देम। Next is lack of opportunities to participate, to be engaged, or to get access in decision making activities. Again, in लोगों को ज़्यादा access नहीं दिया जाता है that you should make decisions and you know to participate in the other activities, या engage रखा जाए उनको, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता है, उन पर चीजें बस डाल दी जाती हैं, because उनको एक बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन समझा जाता है, बिकॉज अपनी कंट्री में तो वो रह नहीं सकते हैं डेफिनेटली, तो जब वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है दैट यू नो वो जो भी हम करेंगे उनको वो मानना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो है हमारी कंट्री में ऑलरेडी शेल्टर सीख करें, तो व्हाई शुड वी बी लिसनिंग टू देम, या उनको डिसीजन मेकिंग पावर क्यों दी जाए, हम उनके बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। Although I'm not saying that you know it's totally incorrect, maybe शायद आपके पास ज्यादा अच्छी cognitive skills हैं इसलिए आप उनके बारे में decision लेने का सोच रहे हैं, but still it is very important to include them whenever there is a decision which is being made in regard to them only. तो उनसे उनकी problems के बारे में सुनना जरूरी है, उनका व्यू पॉइंट लेना जरूरी है, but it is often seen that this does not happen anywhere. उनके लिए जो डिसीजंस होते हैं वो बाकी लोग ही ले लेते हैं एंड वही उनको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं without letting them participate in the decision making process, और उनसे बस उन पर बस थोप दी जाते हैं अपने decisions. Next is lack of information about asylum, refugee rights and available services. Again, these people are very much unaware about their rights, about the information about asylum. कई बार ऐसा देखा गया है कि मे बी अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, कुछ ऐसे एनजीओज होते हैं जो वर्क करते हैं, एंड गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनके हित के लिए बनाए जाते हैं, बट अगेन these people are unaware of all these rights. So in such a situation, what will happen? They will be exploited and they will fall prey to the atrocities of the other people who are trying to manipulate them. So उनको जब उनके रिफ्यूजी राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, असाइलम कौन कहाँ पे असाइलम्स हैं, उनकी फैसिलिटीज क्या क्या हैं, उनके लिए अवेलेबल सर्विसेज क्या क्या हैं, अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो हाउ विल दे एंश्योर कि वो अच्छे से रह पाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो रिफ्यूजीज जो हैं वो फेस करते हैं। Now, next is homeless and slum dwellers. Also, जो आपके internally displaced people होते हैं, they also face the same problems that you know उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जब वो दूसरी स्टेट में जाते हैं। दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं ज्यादा इन लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो दे आस्क फॉर नेशनैलिटी। उनके क्लॉज में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है दैट यू नो यू हैव टू बी इंडियन सिटीजन, कुछ या कुछ भी मतलब इस तरह की चीजें जो है वो आपको मिलती हैं। तो अगेन इनको ज्यादा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होते हैं, ये अपनी लाइवलीहुड को कैसे कंटिन्यू करें, एक नॉर्मल लाइफ कैसे जिए,
अगेन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं वो भी ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही इनको जॉब्स मिलती हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिल पाती हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको ज्यादा एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जब अनएम्प्लॉयड रहेंगे एंड इतनी मार्जिनलाइज सिचुएशन में अगर वो रहेंगे, ड्रेडफुल सिचुएशन में रहेंगे, तो फिर हाउ विल द चिल्ड्रन आल्सो गेट एजुकेशन? एंड इट हैज बीन सीन कि बाद में धीरे धीरे फिर ये लोग छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं टी स्टॉल्स पे, वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये एम्प्लॉयड रहते हैं, एंड सिचुएशन ज्यादा बेटर इनकी इम्प्रूव कभी हो नहीं पाती है। सो बहुत ज्यादा एक ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जिनको काफी जरूरत है कि उन पर अटेंशन दी जाए। The next is homeless and slum dwellers, वो लोग जिनके घर नहीं है, बेघर हैं, वो लोग जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। We all see them, we all observe these kinds of things in our day-to-day life. You know, हम रोड पर देखते हैं लोग फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। We have seen people sleeping in parks and pavements पर सो रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में बना के अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। तो slums basically क्या है? It's a heavily populated urban area characterized by substandard housing and squalor, and homeless is a person with no permanent place to reside. So slum क्या है? स्पेसिफिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये हम अर्बन एरियाज के लिए कैरेक्टराइज करते हैं स्लम्स को। यूजुअली रूरल एरियाज में स्लम्स वगैरह हम नहीं बोलते, क्योंकि अगर उनके घर भी हैं वो कच्चा हाउस रहते हैं उनके, बट यूजुअली ये प्रॉब्लम जो है ये अर्बन एरियाज की है। वहां पर जो है रूरल एरिया से लोग शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहां पे उनको जब प्रॉपर जगह नहीं मिलती है या जो रिफ्यूजीज होते हैं तो वो लोग स्लम्स वगैरह में रहना स्टार्ट करते हैं और सिटीज में ही रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी। सो इट्स अ हेवीली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय सब स्टैंडर्ड हाउसिंग एंड स्क्वेलर। यहाँ की जो घरों की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो काफी सब स्टैंडर्ड होती है एंड स्क्वेलर कंडीशन होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दयनीय काइंड ऑफ सिचुएशन रहती है। वो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होती है एंड हाइजीनिक नहीं होती है। ठीक है, सो दैट इज स्क्वेलर। सो इट्स बेसिकली एक एक्सट्रीमली डर्टी अनप्लेजेंट सिचुएशन, जो कि स्पेशली इसी रीजन से होती है क्योंकि वहां पे पॉवर्टी है। ठीक है, सो ये आपकी डेफिनेशन थी। एंड अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट आर द प्लाइट्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स एंड होमलेस पीपल? So one fourth to half of the urban population resides in slum. This is the data. ये actually थोड़ा old data है, maybe अभी थोड़ा improve हो गया होगा। तो this was some years back report, काफी पुरानी रिपोर्ट है, कुछ साल पुरानी रिपोर्ट है ये। And the situation is no good in metro cities as well. जो आपके अर्बन एरियाज की अगर मैं बात करूं तो उनमें ये प्रॉब्लम रहती है सारे अर्बन एरियाज में, बट जो आपकी मेट्रो सिटीज हैं which have tall claims that we have development in our cities and we are working efficiently, we are operating at optimum level and बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, so the situation is even more worse in those metro cities. If I talk about Bangalore, Hyderabad, Kanpur, Delhi, Mumbai, etc. ये जो मेट्रो सिटीज हैं इनमें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। इफ आई टॉक अबाउट मुंबई स्पेसिफिकली तो वहां पे सबसे ज्यादा स्लम ड्वेलर्स हैं, बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है एंड बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड प्लेस है। अगेन जो यहाँ की लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि यूजुअली ये देखा गया है कि जो इनकी सर्विसेज होती हैं जहाँ पे ये लोग काम करते हैं वो उनके घर से काफी दूर होती है, या जो वाटर सप्लाई है, अगर मैं स्पेसिफिकली वाटर सप्लाई की बात करूं तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से या इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो उन्होंने खुद की जो वाटर बॉडीज हैं, जो उनके आसपास की वाटर बॉडीज थी, वो पूरी उन्होंने एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। एंड अभी रिसेंटली देखा गया है कि वो इतने दूर दूर वाले ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर से उनका जो है पानी जो है वाटर सप्लाई जो है वो आ रहा है। सिमिलरली बैंगलोर जो है वो ऑलमोस्ट 700 मीटर से उनको लिफ्ट करना पड़ता है वाटर पंप्स में। तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब आपने ग्राउंड वाटर को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके हो, कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, आपने ड्राई कर दिया है पूरी लैंड नीचे से, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर चुके हो। तो पंप्स, जो वाटर पंप्स आप लगाते हैं उनको बहुत नीचे से पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है।
तो आपका जो पानी है वो पानी का लेवल जो है वो और ज्यादा नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। एंड जो अगर आप सी से या कोई भी वाटर बॉडी से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपना वाटर सप्लाई, तो वो फिर काफी दूर दूर वाले एरियाज में आपका पानी जो है वहां से आ रहा है, जिसपे ऑफन डिबेट होती है कि आप फिर इंटर स्टेट डिबेट्स होने लग जाती हैं कि हम क्यों दूसरी स्टेट में पानी सप्लाई करें एंड ऑल दैट। सो दीज काइंड्स ऑफ डिबेट्स आर आल्सो स्टार्टिंग टू हैपन। एंड अगेन जो आपका ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो जहाँ पे लोग यूजुअली वर्क करते हैं, जो उनकी वर्क प्लेस होती है वो काफी दूर रहती है, तो वहाँ पर अकोमोडेशन एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो थोड़े दूर एरिया में रहना पसंद कर लेते हैं। थोड़ी कंडीशन खराब भी हो तो वो रहने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पॉकेट पर इजी पड़ता है। ऑल्सो garbage disposal fleets operate to a third or half of their capacity. उसके बाद जो ये इस तरह के जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, वहां पर बहुत ही देखा गया है कि बहुत ज्यादा गंदगी होती है, बहुत अनहाइजीनिक होती है सिचुएशन, एंड गार्बेज जो है वो फैला रहता है। अब इसका रीजन क्या है कि जो लोग हैं जिनको ये ड्यूटी असाइन की गई है दैट यू हैव टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम सो एंड सो एरिया, दे डू नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली एफिशिएंटली। वो अपनी कैपेसिटी का हाफ भी नहीं ऑपरेट कर पाते हैं। अगर उनके टैंट्रम्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, इफ यू टॉक अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, तो ये देखा गया है कि वो फिर नखरे करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी थोड़ा सा अगर आपने आनाकानी करी कि काम को ऐसे कर दीजिए, काम को वैसे कर दीजिए, तो दे विल स्टॉप वर्किंग एट ऑल। एंड ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में मोनोपोली जो है वो आती जा रही है, दे आर नॉट प्राइवेटाइजिंग दीज सेक्टर्स। मे बी अगर कंपटीशन जो है वो थोड़ा और बढ़े तो शायद लोग जो है और ज्यादा एफिशिएंटली जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज जब कंपटीशन आएगा तो अल्टीमेटली उनको थ्रेट रहता है कि हमारी जॉब चली जाएगी अगर हम काम ठीक से नहीं करेंगे, तो मार्केट में और जो बहुत लोग हैं जो हमें टेक ओवर करने को रेडी बैठे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इनको अभी हम वन बाय वन एक एक करके कवर करते हैं। सो फर्स्ट इज क्राउडिंग एंड डीपर्सनलाइजेशन, जिसको आप एपैथी भी बोल सकते हो। बहुत ज्यादा देखा गया कि ओवर क्राउडेड हो जाती हैं ये प्लेसेस जो हैं। इफ यू कुड सी दिस पिक्चर्स, सो देख रहे हो कि ये कैसे कारखाना बन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं, उनके पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो इसी तरह के रैग्स पिक करते हैं। एंड ऑल्सो यू कुड सी दिस पिक्चर, तो ये होमलेस लोग हैं जिनको कोई जगह नहीं मिलती है रहने के लिए, सोने के लिए, तो वो पेवमेंट्स पे, फ्लाईओवर्स के नीचे, फुटपाथ पर जो है वो सोते हैं। तो यू कुड सी द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट दे आर लिविंग इन। कंडीशंस देख सकते हो, कोई प्रॉपर किचन नहीं है, कोई प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, कोई प्रॉपर बेडिंग नहीं है, कोई प्रॉपर खाने की चीजें नहीं है, एंड दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट। So with these kind of things, with these facilities, how are they going to ensure a good education for their children? And usually देखा गया है कि पेरेंट्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो अपने बच्चों को भी फिर इन्हीं सब कामों में लगा देते हैं, वही भीख मांगना एंड ऑल दैट। एंड प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सो क्राउडिंग हो जाती है। जब आपने स्लम्स में देखा होगा, एक ही जगह पे एक छोटे से कमरे के अंदर जो है 6-7 लोग जो है वो रह रहे होते हैं। वन रीजन बीइंग कि एक तो फैमिली प्लानिंग नहीं होती है, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, और क्राउडेड प्लेस हो जाती है बहुत ज्यादा। देन डीपर्सनलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर नेबर्स और देयर सराउंडिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पीपल आर लूजिंग एपैथी फ्रॉम देमसेल्व्स। लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड जो है वो हो जाते हैं, वो सिर्फ अपना देखते हैं, दैट यू नो हमारे कैसे हम अपनी मीन्स को, हमने अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके, हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, दैट्स इट। ऑल्दो ऐसा हर केस में नहीं होगा, पीपल कई जगह पर यूनाइटेड रहकर भी सर्वाइव करते हैं, बट ये एक रीसेंट प्रॉब्लम है जो काफी बढ़ती जा रही है। पीपल आर नो लॉन्गर विलिंग टू गेट पर्सनल विद अदर पीपल, दे नॉट मोर कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स। सो एक डीपर्सनलाइजेशन वाली जो चीज है वो बहुत ज्यादा अभी स्टार्ट होने लग गई है। Water supply and drainage, if I make you see this picture again, can you see any water supply or any kind of drainage system over here? अगर ये यहीं पर रह रहे हैं और अगर वो यहीं पे अपना सब कुछ करना चाह रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं, तो where is the proper drainage and water supply? अगर ये लोग पानी भी यहाँ से ले रहे होंगे तो वो कैसा पानी होगा? वो पानी साफ नहीं होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, and there is no proper drainage. अगेन पावर शॉर्टेज, जो आपके स्लम्स वगैरह में जो लोग रहते हैं, दे डोंट हैव एनी पावर सप्लाई, प्रॉपर कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं होती है, देयर इज नो प्रॉपर सैनिटेशन, कोई हाइजीन का तो कोई नामो निशान नहीं होता है, वहीं पर वो लोग खाते हैं,
वहीं पे वो एक्सक्रीट करते हैं, मक्खियां मच्छर जो हैं बहुत ज्यादा वहां पर घूमते हैं, स्पेशली जो डेंगू वगैरह के मरीज जो होते हैं वो इसी तरह के एरियाज में जाते हैं, मलेरिया हुआ, तो बहुत ज्यादा हाइजीन का प्रॉब्लम जो है ऐसे एरियाज में देखा गया है। अगेन पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज नॉइज पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, बिकॉज ये जो लोग होंगे वो अपने आप को सर्दियों में अगर गर्मी की बात करूं तो वो लकड़ियां जलाएंगे या कोई कोल जलाएंगे, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। एंड नॉइज पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ जब बोलेंगे तो ऑब्वियसली नॉइज पोल्यूशन विल बी देयर। सो many problems are being faced by the slum dwellers. Similarly, the homeless people are also very vulnerable. उनको बहुत ज्यादा vulnerability face करनी पड़ती है, क्योंकि उनको कभी भी कहीं पे भी हटा दिया जा सकता है, उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। हाइजीन प्रॉब्लम इज सेम विद देम एज वेल। ऑल्दो स्लम ड्वेलर्स के पास कहने के लिए एक जगह है जहां पर वो अभी फिलहाल रह रहे हैं, बट होमलेस की सिचुएशन और भी ज्यादा दयनीय होती है। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनको ऐसे समझा जाता है दैट दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर क्रिमिनल्स, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया गया है, तो उनको बस हटाने का सोचा जाता है कि इनको कैसे यहाँ से हटाया जाए, बट वी आर नॉट थिंकिंग कि ये जाएंगे कहाँ पर यहाँ से। अगर उनको हटाने का सोच रहे हैं तो उनके लिए कुछ और भी सोचना चाहिए कि उनको कहाँ पर हम भेजे, कोई उनके लिए प्रॉपर शेल्टर है, उनको वहां पर भेजना चाहिए। लेकिन नहीं, बस उनको एक टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए, अपनी जगह ठीक करने के लिए, पीपल ऑलवेज ट्राई टू रिमूव देम, दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम। अगेन इनको एक्सेस नहीं मिल पाता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, उनके पास कोई प्रॉपर कोई राशन कार्ड नहीं होता, कोई हेल्थ कार्ड नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई प्रिवेसी नहीं होती है, खुले में सोना, अगेन वहां पर कोई भी प्रिवेसी नहीं होती है। पूरी फैमिली 3-3 4-4 6-6 बच्चों के साथ वो एक पेवमेंट पर रह रहे हैं, एक फुटपाथ पर रह रहे हैं, देयर इज नो प्रिवेसी टू देयर लाइफ, सिक्योर नहीं है, कोई भी कहीं पर भी आकर उन पर गाड़ी चला सकता है, उन्हें मार सकता है, एंड उनको थ्रेटन कर सकता है, सो दे आर नॉट सिक्योर्ड एट ऑल। वायलेंस उनको देखा गया है कि ऑफन मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, एनस्लेव कर दिया जाता है उनको, एंड चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, देयर आर वेरी bleak chances that the children of these people will ever get any kind of education in good schools, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही काम पर लगा दिया जाता है, तो एजुकेशन जो है वो उनको नहीं मिल पाती है। So this is it for today's lecture, and the 2 questions are given over here. So you have to discuss the problems faced by the slum dwellers, and you have to discuss the problems faced by the homeless people. So this is it for today's lecture. Thank you guys.